लव माई इंडिया। आपका मेरे इस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 17 और इस लेसन का क्या नाम है? इस लेसन का नाम है आई लव माई इंडिया। दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ द बुक। ये लेसन आपकी किताब का आखिरी लेसन है। इसके बाद कोई लेसन नहीं है। ये लेसन खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद आपको कोई भी लेसन नहीं पढ़ोगे और आगे वाली क्लासेस में हमारी आपकी मुलाकात होगी। जब आप क्लास 6 में जाओगे तो हम आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। ठीक है? अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो, मेरा टीचिंग पहली बार देख रहे हो, मेरा पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखना, सारे लेसन्स मिल जाएंगे। उसको भी एक बार पढ़ लेना और जब एग्जाम आने वाला होगा एक बार पूरा रिवीजन कर लेना, आपके पेपर्स अच्छे हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले लेसन को रीड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको नोट डाउन करेंगे। फिर लास्ट में लेसन की हिंदी मीनिंग को हम लोग समझेंगे। तैयार हो जाओ, अपनी बुक ओपन कर लो, हम लोग लेसन को रीड करेंगे सबसे पहले। ठीक, अपनी अपनी बुक निकाल लो। ओके, तो आप लोगों ने अपनी अपनी बुक को ओपन कर लिया है। अब मैं इस लेसन को रीड करूंगा और आपको क्या करना है, अपनी बुक में ध्यान से देखना है। ठीक है? और जो भी डिफिकल्ट वर्ड लगे, जिसका प्रोनाउंसिएशन ना आ रहा हो, जो पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है? ऐसे अंडरलाइन कर लेना। ठीक, और जिससे कि दोबारा हम जब पढ़ेंगे तो उस पर फिर से ध्यान देना। चलो शुरू करते हैं लेसन की रीडिंग। लेसन नंबर 17, आई लव माई इंडिया। इंडिया इज आवर मदरलैंड. It is well known for its social and religious integrity all over the world. Our country is a rich and beautiful country. It has many cultures and religions. Our country extends from the colorful Rajasthan and Gujarat in the west to the vast green tea gardens of Assam in the east, the mighty Himalayas crowning Kashmir in the north to the beautiful Kerala and Tamil Nadu in the south. Our country is a center of attraction for tourists because it has many beautiful places. The Taj Mahal, the Fatehpur Sikri, the Red Fort, and the Qutub Minar are a few wonders which attracts many people all over the world. India is known for its unity in diversity. We speak many languages, worship many gods, and yet
We have the same spirit, the spirit of India. This spirit of oneness runs through all parts of our country, binding us together. We celebrate different festivals like Holi, Diwali, Baisakhi, Eid, Christmas, Pongal, etc. with great joy and happiness. We all live here happily. I love my country and I am proud to be an Indian. ओके, थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इस लेसन में, एक दो बार आपको पढ़ना होगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, इसको एक दो बार रीड जरूर कर लेना। चलो एक बार हम फिर से जो जल्दी जल्दी रीडिंग करेंगे, जो एक बार तो जो एक दो चीजें छूट गई होंगी तो फिर से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, ध्यान देना। ठीक। इंडिया इज आवर मदरलैंड। इट इज वेल नोन फॉर इट्स सोशल एंड रिलीजियस इंटीग्रिटी all over the world. Our country is a rich and beautiful country. It has many cultures and religions. Our country extends from the colorful Rajasthan and Gujarat in the west to the vast green tea gardens of Assam in the east, the mighty Himalayas crowning Kashmir in the north to the beautiful Kerala and Tamil Nadu in the south. Our country is a center of attraction for tourists because it has many beautiful places. The Taj Mahal, the Fatehpur Sikri, the Red Fort, and the Qutub Minar are a few wonders which attracts many people all over the world. India is known for its unity in diversity. We speak many languages, worship many gods, and yet we have the same spirit, the spirit of India. This spirit of oneness runs through all parts of our country, binding us together. We celebrate different festivals like Holi, Diwali, Baisakhi, Eid, Christmas, Pongal, etc. with great joy and happiness. We all live here happily. I love my country and I am proud to be an Indian. ओके, तो ये रीडिंग मैंने कर दी। एक दो बार अपने अपने बुक में आप लोग रीड करोगे तो अच्छा लगेगा, क्लियर हो जाएगा। और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लेना, जो वर्ड छूटा होगा वो भी समझ में आ जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं हमेशा, हम लोग वर्ड मीनिंग को नोट करेंगे। अपनी अपनी कॉपी निकालो और पेन को तैयार करो और शुरू करते हैं हम लोग। इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको नोट करना। ठीक, तैयार हो जाओ। वर्ड मीनिंग लिखना। लेसन ऊपर हेडिंग डाल दो, लेसन नंबर 17, आई लव माई इंडिया। ये हेडिंग डालो जल्दी से पेन से। ओके, और फिर उसके बाद नीचे वर्ड, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग, ये तीन चीज हेडिंग डालो, इसको नोट करो। उसके बाद हम लोग वर्ड मीनिंग को नोट करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करें। तैयार हो गए सब? ओके, थोड़ा सा लंबा लेसन है, इसमें वर्ड मीनिंग्स भी थोड़ी ज्यादा होंगी तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग धैर्य पूर्वक इसको लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे, क्योंकि इस लेसन में ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स आए हुए हैं और मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग नोट कराने की। ज्यादा वर्ड्स मैंने निकाले हैं ढूंढ के और आपको मैं नोट कराऊंगा।
तो तैयार हो जाओ सब लोग, हेडिंग पड़ गई। चलो शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमारा है मदर लैंड। MOTHERLAND। MOTHERLAND, मदर लैंड। मदरलैंड मीन्स मातृभूमि। मातृभूमि, मातृभूमि। मदरलैंड मीन्स मातृभूमि, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं उसको मदरलैंड बोलते हैं। भारत हमारी मदरलैंड है। इंडिया इज आवर मदरलैंड, ये हमारी मातृभूमि है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है वेल। WELL। WELL, वेल मीन्स अच्छा, अच्छा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है नोन। KNOWN। KNOWN, नोन। नोन मीन्स जाना जाता है। नोन मीन्स जाना जाता है। सोशल, अगला वर्ड है सोशल। SOCIAL। SOCIAL, सोशल। सोशल मीन्स सामाजिक, सामाजिक। नेक्स्ट वर्ड रिलीजियस। RELIGIOUS। RELIGIOUS, रिलीजियस। रिलीजियस मीन्स धार्मिक। इस क्लास में तो हम प्रोनाउंसिएशन लिखा दे रहे हैं कि जितने भी प्रोनाउंसिएशन है ये पूरा प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउंसिएशन नहीं लिखाएंगे। ठीक है, सीधे सीधे मीनिंग लिखाएंगे, सिर्फ वर्ड नोट कराएंगे और मीनिंग नोट कराएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो अच्छे से ज्यादा से मेहनत कर लो, जिससे कि ज्यादा ज्यादा वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको याद हो जाए। अगली क्लास में हम केवल वर्ड मीनिंग नोट कराएंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है इंटीग्रिटी। INTEGRITY। INTEGRITY, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स क्या होता है? अखंडता। अखंडता मीन्स एकजुटता, एकजुटता, एकता, एकता भी कह सकते हैं। ठीक है, जो खंड ना हो सके, जो विभाजित ना हो सके, वो अखंडता है। ठीक, इसका खंड न किया सके, इसको अलग न किया जा सके, वो है एकजुटता, एकता मतलब खंडता। इंटीग्रिटी मीन्स खंडता। वर्ल्ड, नेक्स्ट वर्ड वर्ल्ड। WORLD। WORLD, वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स संसार, दुनिया। दुनिया ही बोलते हैं ना, दुनिया। वर्ल्ड मीन्स संसार। चलो नोट कर लिया, आगे बढ़े। ROUR, OUR, आर मीन्स हमारा। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन आवर नहीं होता, ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आर करेंगे। आर, ये लिखा हुआ है ना, आर। आवर नहीं पढ़ेंगे, आवर गलत प्रोनाउंसिएशन है, आर पढ़ेंगे। आर मीन्स हमारा। कंट्री, COUNTRY। COUNTRY, कंट्री। कंट्री मीन्स देश। रिच, RICH, RICH, रिच मीन्स अमीर। एक गरीब होते हैं, गरीब का अपोजिट क्या होता है? अमीर। जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं उनको अमीर बोलते हैं। जो धनी होते हैं, धनी मतलब अमीर, इसको धनी भी बोल सकते हो, धनी।
ब्यूटीफुल, Beautiful, Beautiful, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स बहुत सुंदर। ये तो पहली बार पढ़ा नहीं है, तो कई बार ये वर्ड आ चुका है, तो याद भी आना चाहिए, ठीक है। ब्यूटीफुल मीन्स बहुत सुंदर। मेनी, MANY, मेनी, जिसकी वर्ड मीनिंग आपको याद हो उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम नोट करा दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि रिपीटिशन हो। जितना रिवीजन होगा, जितना रिपीटिशन होगा, उतना मेमोरी में आपको याद आएगा, अपना आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। इसलिए हम बार बार उन्हीं वर्ड्स को नोट कराते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए, ठीक। मेनी, अब ये वर्ड भी कई बार आ चुका है, MANY, मेनी मीन्स बहुत। कल्चर, CULTURE, CULTURE, कल्चर। कल्चर मीन्स संस्कृति, संस्कृति। एक्सटेंड, EXTEND, EXTEND, एक्सटेंड। एक्सटेंड मीन्स फैला होना, फैला होना, विस्तार होना, को विस्तार भी लिख सकते हैं, विस्तार। ठीक। नेक्स्ट वर्ड, वेस्ट, WEST, वेस्ट, WEST, वेस्ट। वेस्ट मीन्स पश्चिम दिशा। दिशाओं के बारे में पढ़ा होगा ना, तो वेस्ट मीन्स क्या होता है, पश्चिम दिशा। नेक्स्ट है वास्ट, वास्ट, VAST, वास्ट। वास्ट मीन्स बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। VAST, वास्ट मीन्स बहुत बड़ा। टी गार्डन, TEAGARDEN, TEAGARDEN, टी गार्डन, टी गार्डन, टी गार्डन मीन्स चाय के बागान, चाय के बागान। जहाँ चाय की पत्ती उगती है उसको चाय के बागान बोलते हैं। ईस्ट, अगला वर्ड हमारा है ईस्ट, EAST, EAST, ईस्ट मीन्स पूरब दिशा, पूरब दिशा। नेक्स्ट वर्ड, माइटी, MIGHTY, MIGHTY, माइटी। माइटी मीन्स शक्तिशाली, शक्तिशाली मीन्स ताकतवर, ताकतवर। माइटी मीन्स शक्तिशाली या ताकतवर। नॉर्थ, NORTH, NORTH, नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स उत्तर दिशा। पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर भी आ गया, उत्तर दिशा भी आ गया। अब फिर अगला अगला वर्ड है साउथ, SOUTH, SOUTH, साउथ। साउथ मीन्स दक्षिण दिशा। ईस्ट मीन्स पूरब, वेस्ट मीन्स पश्चिम, नॉर्थ मीन्स उत्तर दिशा, और साउथ मीन्स दक्षिण दिशा। नेक्स्ट, सेंटर, CENTRE, सेंटर, CENTRE, सेंटर। सेंटर मीन्स केंद्र, केंद्र होता है ना, केंद्र। नोट हो गया, आगे बढ़े। अट्रैक्शन, नेक्स्ट वर्ड हमारा अट्रैक्शन, ATTRACTION, ATTRACTION, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मीन्स
आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण मीन्स आकर्षण, अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण। नेक्स्ट, नेक्स्ट, टूरिस्ट, TOURIST, TOURIST, टूरिस्ट, टूरिस्ट मीन्स पर्यटक, जो घूमने वाले लोग आते हैं किसी जगह पर, तो उनको क्या बोलते हैं? पर्यटक बोलते हैं हिंदी में, मतलब घूमने वाले। तो किसी स्थान पर घूमने जाते हैं तो उनको वहां के लोग क्या बोलते हैं? पर्यटक। ये घूमने वाले हैं, पर्यटक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, बिकॉज, BECAUSE, BECAUSE, बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि, क्योंकि। ओके, नेक्स्ट, प्लेस, PLACE, प्लेस, प्लेस मीन्स स्थान, स्थान। फ्यू, FEW, फ्यू, फ्यू मीन्स कुछ, थोड़ा, थोड़ा या कुछ। ओके, नेक्स्ट वर्ड, वंडर, WONDER, WONDER, वंडर, वंडर मीन्स आश्चर्य, वंडर, वंडर मीन्स आश्चर्य। नेक्स्ट, विच, WHICH, WHICH, विच मीन्स कौन सा, कौन सा। ठीक है, नेक्स्ट, अट्रैक्ट, ATTRACT, ऊपर अट्रैक्शन आया था, अब यहाँ पर क्या आया है? अट्रैक्ट, उसी से बना हुआ है, अट्रैक्ट से अट्रैक्शन बना हुआ है। अट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? ATTRACT, अट्रैक्ट मीन्स अट्रैक्ट, ये आधा का होगा और टा पूरा होगा। अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना, और अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण, और ये वर्ब है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, यूनिटी। अगला वर्ड कौन सा हमारा? यूनिटी, UNITY, UNITY, यूनिटी, यूनिटी मीन्स एकता। डाइवर्सिटी, DIVERSITY, DIVERSITY, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता, 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 डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता। नेक्स्ट, स्पीक, SPEAK, SPEAK, स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना। नोट हो गया। नेक्स्ट, लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स भाषा, भाषा। नेक्स्ट, वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप, वर्शिप मीन्स पूजा करना, पूजा करना। गॉड, GOD, गॉड, गॉड मीन्स GOD, गॉड, गॉड मीन्स ईश्वर, भगवान।
ठीक। नेक्स्ट, येट, Y-E-T, येट। येट मीन्स अभी तक, अभी तक। सेम, S-A-M-E, S-A-M-E, सेम। सेम मीन्स एक जैसा, एक समान। ठीक, एक समान। सेम, सेम मीन्स एक जैसा या एक समान। नेक्स्ट, स्पिरिट, S-P-I-R-I-T, S-P-I-R-I-T, स्पिरिट मीन्स भावना, भावना। नेक्स्ट, पार्ट्स, P-A-R-T-S, P-A-R-T-S, पार्ट्स। पार्ट्स मीन्स हिस्सा, भाग, भाग या हिस्सा। पार्ट्स मीन्स हिस्सा या भाग। नेक्स्ट, थोड़ा सा और बचा हुआ बस। बाइंडिंग, B-I-N-D-I-N-G, B-I-N-D-I-N-G, बाइंडिंग। बाइंडिंग बंधा होना, बंधा होना। नेक्स्ट वर्ड है टुगेदर, T-O-G-E-T-H-E-R, T-O-G-E-T-H-E-R, टुगेदर। टुगेदर मीन्स साथ, 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 साथ। सेलिब्रेट, C-E-L-E-B-R-A-T-E, C-E-L-E-B-R-A-T-E, सेलिब्रेट मीन्स मनाना, मनाना। मनाते हैं नहीं, सेलिब्रेट्स हो जाएगा तो मनाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा मनाना, मनाना। तो त्योहार को मनाते हैं तो उसकी हिंदी आती है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना, जो मनाते त्योहार, जो हम लोग फेस्टिवल को मनाते हैं तो उसको, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। त्योहार मनाते हैं तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसकी इंग्लिश है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मीन्स मनाना। डिफरेंट, D-I-F-F-E-R-E-N-T, D-I-F-F-E-R-E-N-T, डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स अलग, भिन्न, भिन्न या अलग। नेक्स्ट, फेस्टिवल, F-E-S-T-I-V-A-L, F-E-S-T-I-V-A-L, फेस्टिवल। फेस्टिवल मीन्स त्योहार। लाइक, L-I-K-E, L-I-K-E, लाइक मीन्स पसंद, पसंद करना, पसंद। विथ, W-I-T-H, W-I-T-H, विथ। विथ मीन्स साथ। थोड़ा सा और बचा हुआ है, देखो, दो ये बचा है, तीन ये बचा हुआ है, एक ज्यादा नहीं है बस। ग्रेट, अगला वर्ड कौन सा? ग्रेट, G-R-E-A-T, G-R-E-A-T, ग्रेट। ग्रेट मीन्स महान। जॉय, J-O-Y, J-O-Y, जॉय। जॉय मीन्स प्रसन्नता या खुशी, प्रसन्नता। और उसी से मिलता जुलता वर्ड है हैप्पीनेस। अगला वर्ड है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस और जॉय पर्यायवाची है, दोनों का मतलब एक ही होता है। हैप्पीनेस, H-A-P-P-I-N-E-S-S, H-A-P-P-I-N-E-S-S,
N-E-S-S, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स खुशी। हैप्पीनेस मीन्स खुशी। हैप्पीली, अब यहाँ पे हैप्पीनेस से हैप्पीली, हैप्पी से हैप्पीनेस बना, हैप्पीनेस से हैप्पीली बना। ठीक है, Happily, हैप्पीली। हैप्पीली मीन्स खुशी से, हैप्पीली मीन्स खुशी से। और लास्ट वर्ड हमारा इस लेसन का है प्राउड, P-R-O-U-D, P-R-O-U-D, प्राउड। प्राउड मीन्स गर्व, अभिमान, गर्व। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा पूरा लेसन था, इसकी वर्ड मीनिंग हमने नोट किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लेसन को पढ़ेंगे और उसकी हिंदी मीनिंग समझेंगे। ठीक है, एक बार फिर से अपनी अपनी बुक को ओपन कर लो और ध्यान से देखो कि हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं उसकी मीनिंग बताएंगे, उसको समझना। ठीक, चलो अपनी बुक को एक बार फिर से निकाल दो बहुत ही ध्यान से सुनना। ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ये हमारे इस पूरी बुक का आखिरी लेसन है, तो बहुत ध्यान से इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसकी हिंदी मीनिंग को समझेंगे। तो अपनी अपनी बुक को ओपन कर लो और ध्यान से सुनो। एक बार में अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लेना, तो जो भी कुछ नहीं समझ में आएगा क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं हम लोग। आई लव माई इंडिया। लव मीन्स प्यार, माई इंडिया मीन्स मेरा भारत। मुझे अपने भारत से, अपने देश से प्यार है। आई लव माई इंडिया, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ या करती हूँ। ठीक, चलो इसी ये पूरे देश इंडिया, अपने देश के बारे में पूरा लेसन है, अपनी कंट्री के बारे में पूरा लेसन है। तो ध्यान से समझना, बहुत कुछ समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जो कंफ्यूजन में है वो आज सब समझ में आ जाएगा। तैयार, शुरू करें, चलो। इंडिया इज आर मदरलैंड। इंडिया इज आर मीन्स हमारी, मदरलैंड मीन्स मातृभूमि। भारत हमारी मातृभूमि है। भारत हमारी मातृभूमि है। इट इज वेल नोन फॉर इट्स सोशल एंड रिलीजियस इंटीग्रिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज वेल नोन, वेल नोन मीन्स अच्छी तरह से जानी जाती है। किसके लिए, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, सोशल मतलब सामाजिक और धार्मिक अखंडता के लिए हमारा देश जाना जाता है पूरे संसार में। पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हमारा देश इसकी सामाजिक और धार्मिक अखंडता के लिए जाना जाता है। Our country is a rich and beautiful country. हमारा देश रिच मतलब समृद्ध और बहुत ही खूबसूरत देश है। हमारा देश समृद्ध है और बहुत ही खूबसूरत देश है। It has many cultures and religions. It has many मतलब many means बहुत, कल्चर्स में संस्कृति, एंड रिलीजन्स और धर्म, बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारी संस्कृतियां हैं। हमारे देश में बहुत सारी संस्कृति है, जैसे आसाम की अलग संस्कृति है, पंजाब की अलग संस्कृति है, राजस्थान की अलग संस्कृति है, गुजरात की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, केरला की अलग है, तमिलनाडु कर्नाटका की अलग संस्कृति है, और हमारे उत्तर प्रदेश की अलग संस्कृति है। तो हर प्रांत की अलग अलग संस्कृति है। और बहुत सारे धर्म भी हमारे यहाँ, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बुद्ध है, और ये हमारा देश बहुत सारे संस्कृति और बहुत सारे धर्म की वजह से जाना जाता है। हमारे देश में कई सारी संस्कृति और धर्म हैं। समझ में आ गया।
Our country extends from the colorful Rajasthan and Gujarat in the west to the vast green tea gardens of Assam. Our country, हमारा देश, extends means फैला हुआ है. कहाँ से? From the colorful Rajasthan and Gujarat. रंग बिरंगा राजस्थान और गुजरात से लेकर इन द वेस्ट पश्चिम में रंग बिरंगा राजस्थान गुजरात से लेकर हमारा देश फैला हुआ है. कहाँ तक? टू तक वास्ट विशाल ग्रीन मतलब हरे टी गार्डन चाय के बागान ऑफ आसाम इन द ईस्ट पूरब में चाय के आसाम के विशेष चाय के मैदान तक हमारा देश पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है. ये देखो हमारा देश है ना, ये देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, ये हमारा देश का नक्शा है. तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर है गुजरात राजस्थान, ये जगह पे है गुजरात राजस्थान, और यहाँ पर है पूरब में आसाम. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा देश फैला हुआ है. लिखा हुआ है कलरफुल राजस्थान और गुजरात, रंग बिरंगा राजस्थान गुजरात. पश्चिम में रंग बिरंगा राजस्थान और गुजरात से लेकर पूरब में आसाम के चाय के बागान तक हमारा देश फैला हुआ है. द माइटी हिमालयाज crowning Kashmir in the north to the beautiful Kerala and Tamil Nadu in the south. अब क्या कह रहा है? द माइटी मतलब शक्तिशाली, ताकतवर हिमालय, जो हिमालय पर्वत है बहुत ही शक्तिशाली है, वो कश्मीर में मुकुट के समान, कश्मीर पर मुकुट के समान है. जो हमारा कश्मीर, ये कश्मीर है, ये कश्मीर का हिस्सा है. ठीक है, ये हमारा कश्मीर है. कह रहा है कि शक्तिशाली हिमालय पर्वत कश्मीर पर मुकुट के समान है. इन द नॉर्थ उत्तर में, ये उत्तर दिशा हो गई. ठीक है, ऊपर की दिशा हमारी उत्तर की दिशा हो गई है. ये पूरब हो गई, ये पश्चिम हो गई, और नीचे दक्षिण हो गई. तो उत्तर में हिमालय, शक्तिशाली हिमालय पर्वत कश्मीर में मुकुट के समान है, मुकुट की तरह है, टू द ब्यूटीफुल केरला, एंड तमिलनाडु, जो यहाँ से फैला हुआ, कश्मीर से फैला हुआ कहाँ तक? केरल और तमिलनाडु इन द साउथ. दक्षिण में केरला और तमिलनाडु तक फैला हुआ है. ये पूरा पैराग्राफ एक सेंटेंस है, ये पूरा पैराग्राफ एक सेंटेंस है. इसका पूरे का मतलब ये हो गया कि पश्चिम से लेकर पूरब तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारा देश फैला हुआ है. ठीक, पश्चिम में राजस्थान गुजरात से लेकर पूरब में असम तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु केरला तक हमारा देश फैला हुआ है. समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं. Our country is a center of attraction for tourists because it has many beautiful places. Our country, हमारा देश, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र है. हमारा देश आकर्षण का केंद्र है. फॉर टूरिस्ट, किसके लिए? पर्यटकों के लिए हमारा देश आकर्षण का केंद्र है, मतलब घूमने वाले हमारे यहाँ आते रहते हैं. बिकॉज, क्योंकि, इट हैज मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं. कई जगह ऐसी हैं जो कि बहुत सुंदर है. और वो जगह कौन कौन सी है? द ताजमहल, द फतेहपुर सीकरी, द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार आर अ फ्यू वंडर्स विच अट्रैक्ट मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो सुंदर सुंदर जगह है उसमें से ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, लाल किला है, और कुतुब मीनार है. ये कुछ जगह ऐसे हैं आश्चर्यचकित करने वाले हैं, जो लोगों को आकर्षित करते हैं पूरे संसार से. पूरे संसार के लोगों को ये जगह लोगों को आकर्षित करते हैं.
पूरे संसार के लोगों को ये जगह, कौन कौन सी जगह, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, कुतुब मीनार, ये कुछ वंडर्स हैं, आश्चर्यचकित करने वाली जगह हैं जो लोगों को आकर्षित करती हैं, संसार के लोगों को आकर्षित करती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत जाना जाता है, इंडिया इज नोन में जाना जाता है किसके लिए? इट्स यूनिटी, एकता के लिए। किसमें? विभिन्नता में एकता के लिए जाना जाता है। विभिन्नता कैसे? क्योंकि अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं, एक देश में हैं। इंडिया, जब हिंदुस्तान की बात आती है, जब इंडिया की बात आती है, तो हम लोग एक हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी एकता के लिए हम जाने जाते हैं, हमारा देश जाना जाता है। वी स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, वर्शिप मेनी गॉड्स, एंड येट वी हैव द सेम स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ इंडिया। वी स्पीक, हम लोग बोलते हैं, मेनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं, सबकी भाषा अलग अलग है। तमिलनाडु की भाषा अलग है, उड़ीसा की भाषा अलग है, पंजाब की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग भाषा है। तो हर प्रांत की अलग अलग भाषाएं हैं। वी स्पीक, हम लोग बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। वर्शिप, पूजा करते हैं, मेनी गॉड्स, कई देवताओं की। हम लोग कई भाषाएं बोलते हैं और कई देवताओं की पूजा करते हैं। एंड, और येट, फिर भी, वी हैव द सेम स्पिरिट, लेकिन हमारी भावना एक ही है, हमारी सबकी भावना एक समान है। और वो भावना कौन सी? द स्पिरिट ऑफ इंडिया, भारतीय होने की भावना। हम सब भारतीय हैं, ये भावना हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, हमारे अंदर विद्यमान है। द स्पिरिट ऑफ वननेस रन्स थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, बाइंडिंग अस टुगेदर। जो स्पिरिट है, जो भावना है, वननेस की, एकता की, जो एकजुटता की, एक रहने की जो भावना है, रन्स थ्रू, ये बहती है, ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे पूरे देश में ये बहती है, और बाइंडिंग अस टुगेदर, जो हमें एक दूसरे से बांधे रहती है। एकजुट रहने की भावना जो पूरे देश में बहती है, यही हमें एक दूसरे से बांधे रहती है। बाइंडिंग मीन्स बांधे रहती है, टुगेदर में साथ साथ। वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट मीन्स मनाते हैं, हम लोग डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाते हैं, हम लोग भिन्न भिन्न अलग अलग त्योहार मनाते हैं। लाइक, जैसे कि होली, दिवाली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस, पोंगल, हम लोग कई तरह के त्योहार मनाते हैं। लाइक में जैसे कि होली, दिवाली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस, पोंगल इत्यादि। विद ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, खूब बहुत सारी खुशी और प्रसन्नता के साथ हम लोग सारे त्योहार मनाते हैं। वी ऑल लिव हियर हैप्पीली, हम लोग यहाँ पर खुशी से रहते हैं। हैप्पीली मीन्स खुशी से, लिव मीन्स रहते हैं, हम सब यहाँ पर खुशी से रहते हैं। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। एंड, और, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। इंडियन मीन्स भारतीय, प्राउड मीन्स गर्व, मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है। तो ये लेसन कैसा लगा सबको? अच्छा लगा? देखो यहाँ पर कुछ और लाइंस दी हुई है इस लेसन के बारे में, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं, ये क्यों रह जाए। ठीक है। आर्स इज ए लैंड ऑफ सेजेस, नोन फॉर ब्रेवरी फॉर एजेस, नन कैन विद इट कॉम्पीट, इट्स कल्चर नन कैन बीट। ये किसी ने कहा है, किसी कोटेशन है, इसमें लिखा है, ये संतों की भूमि है। सेजेस में संत होते हैं, हमारा देश जो है संतों की, साधु संतों की भूमि है। नोन फॉर ब्रेवरी, जो कि बहादुरी के लिए युगों से जानी जाती है, जिस मैंने युगों युगों से जो कि बहादुरी के लिए जानी जाती है। नन कैन विद इट कम्पीट, कोई भी इससे तुलना नहीं कर सकता है, इसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है। इट्स कल्चर नन कैन बीट, इसकी संस्कृति से किसी की तुलना की नहीं जा सकती है। और नन कैन बीट, और इसे कोई हरा नहीं सकता है। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा ये लेसन? अच्छा लगा? मजा आया?
नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आज आखिरी लेसन था आप लोगों के लिए, लेसन नंबर 17। और इसको मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से समझाने की। थोड़ा लेसन डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग और मौका मिलेगा तो हम वीडियो बना देंगे कुछ ग्रामर की, नहीं तो मिलेंगे हम लोग क्लास 6 में। आप लोग मुझसे इसी चैनल पर अगले क्लास में भी जुड़े रहना, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा अपना एक फोन नंबर है 708033030880। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। 708033030880, इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप करना है, ठीक है। व्हाट्सएप करके आप बता सकते हो कि कौन सा आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर आपको वीडियो जरूरत है। इसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो हम उसका वीडियो भी बना देंगे। क्लियर हो गया? तो चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना।